Hello everyone, I'm Professor Raj Mohan Nair. Today we are back again with a video session on the topic of Semester 1 Accounting for Managers from Master of Commerce. Now today we are going to start with a new chapter in this series of video session, that is Emerging Dimensions in the Accounting. And there are various dimensions in the accounting, and we will be going to do each and every topic one by one. And in today's session we will be seeing a new accounting dimension, a new economic dimension, I would say, with regards to accounting, and that is known as economic value added, friends. And also with economic value added we are going to study today, that is market value added. Can I say EVA and MVA? That is today's topic. So let's start with the topic, and the topic starts with the definition of economic value added, friends. नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि ये क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इट टॉक्स अबाउट सम वैल्यू एडिशन, इजंट इट? ये वर्ड से हमें इतना क्लियर होता है. एज यू कैन सी परहैप्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, when you use the word economic value added, can I say it is something which you would have got your value more than what you would have invested in your business? Yes or no? Can I say एक नॉर्मल कंडीशन में मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट in the company, and in that case whatever return you are getting, and जितना आपको असलियत में जितना इकोनॉमिक वैल्यू उसका मिलता होगा, can I say the difference between the two, the opportunity cost as well as whatever return you are getting in actual, ये दो चीजों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या मैं कह सकता हूं हमें हमारी कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पता चल सकती है, फ्रेंड्स? Yes, with the same base we can see over here it starts with economic value added. Economic value added is a company's performance management tool. Now this is very important, friends. हम ईवीए क्यों करते हैं या ईवीए करने के पीछे का रीजन क्या है? तो एक तो बेटा ये स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को लेके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके एक बहुत बड़ा टूल होता है कंपनी के लिए, जिसके बेस से आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं कंपनी में. यू कैन टेक अ वेरियस डिसीजन इन द कंपनी, एंड दिस टूल परहैप्स would be an important tool for all to take some important decision with regards to the investment made in the company, isn't it, friends? Can I say it is nothing but a company's performance management tool to check what? To check the value created for the shareholders. मैंने आपको पहले ही कहा शेयर होल्डर्स की कैपिटल है, फ्रेंड्स. वो कैपिटल के सामने कितना वैल्यू उसका इन्वेस्टेड है, दैट इज व्हाट. जितना इन्वेस्टेड कैपिटल होगा उसके सामने उसको रिटर्न कितना मिलता है, दैट विल मेक यू नो अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. सिर्फ और सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस देखने से मतलब नहीं है, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही देखकर कोई मतलब नहीं है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भले ही अच्छा हो, लेकिन आपके शेयर होल्डर को रिटर्न कितना मिलता है, दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, फ्रेंड्स. कैन आई से विद दिस mentality and with this base, this concept came, or this concept was emerged. Over here you can see a name of a person called Stewart. As Stewart mentioned, now Stewart was a person who gave the concept of EVA and MVA. जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है वैसे ही मार्केट वैल्यू एडेड भी होता है, फ्रेंड्स. हम थोड़ी ही देर के बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कैन आई से एज फार एज this economic value added is concerned, what Stewart had said in his definition is, he has mentioned the economic value added is the nothing but net operating profit. Now what he has said, it is a net operating profit minus an appropriate change for the opportunity cost of all the capital invested in an enterprise or the project. Can I say आपकी कैपिटल जितना इन्वेस्ट हुआ है उसका मैं बोल सकता हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नथिंग बट इंडस्ट्री में जितना चल रहा होगा, कितना रिटर्न चल रहा होगा उसका कंपैरिजन. मतलब आपको जितना मिल रहा है, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी, अगर वही इन्वेस्टेड फंड्स अगर आपने कहीं पे सिमिलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना वेल्थ मिलता, क्या मैं बोल सकता हूं उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या हो जाएगा, हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो विथ this opportunity cost wala funda we can find it out what is the economic value added of the business, friends. It is an estimate of the true economic profit or amount by which the earnings exceed
or falls short of the required minimum rate of return investors could get by investing in the other securities of the comparable risks. मतलब हमारी जैसी कंपनी के ही सेम टू सेम टाइप के कंपैरेबल रिस्क वाली कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से हमें कितना ज्यादा और ज्यादा मिल सकता है. अगर हमें ज्यादा भी मिल सकता है, हमें कम भी मिल सकता है, राइट. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें इंडस्ट्री से ज्यादा ही मिले, हर बार मिले तो बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड. But it might happen that sometimes your returns are less than what the minimum rate of return is acquiring from the market which is available for that invested funds, isn't it? Can I say in a nutshell, EVA can be positive as well, it can be negative as well. ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहां पे सच्ची में कोई पॉजिटिव चीज मिला है, शायद डाउनफॉल भी आपको देखने मिल सकता है. दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. You can see the organizational mainly focuses on what? On a greater return देन द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दोस्तों देखो, कंपनी की खुद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. जितनी भी कैपिटल आपने देखी होगी, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक ओनर्स कैपिटल होता है, एक बोरोड कैपिटल होता है. ओनर्स कैपिटल मतलब खुद ओनर्स की हो गई, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, ये सब ओनर्स की खुद की अमानत है. लेकिन बोरोड कैपिटल की बात करें तो कैन आई से डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट, लॉन्ग टर्म लोन जो बाहर से आपने लिया हुआ है. दोस्तों अब ये बोरोड कैपिटल हो गया या हमारा कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका जो कॉस्ट है, जो ओवरऑल कॉस्ट है, हम क्या चाहेंगे हमेशा, हम तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में यही चाहेगा कि उसका रिटर्न क्या हो, ग्रेटर हो, उसके कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो. सीधी बात है, हम सब यही चाहेंगे. दस एंश्योरिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वैल्यू. In this way, the EVA is a strategy formulation as well as financial performance management. Can I say, मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि EVA सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात नहीं करता है. यहां पे बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, अगर कोई बिजनेस हो गया स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना चाहती है, फॉर्मुलेट कर रही है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ता है. फ्रेंड्स, they have to clearly mention. Can I say with this regards, with this note, EVA plays an eminent role over here for two purposes. That is what? Strategy formulation, and second is nothing but the performance tool for management that helps the companies to make what? A greater return than the overall cost of capital of the firm invested. जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा आपकी अगर वेल्थ बनती है, यही हम सबकी इच्छा भी होती है और यही सब हम लोग स्ट्राइव करते हैं कि हम लोग यही अचीव कर पाए कंपनी के अंदर, राइट फ्रेंड्स. और यहां पे आप देख सकते हो स्टीवन स्टीवर्ट, दैट इज स्टर्न स्टीवर्ट ने यहां पे क्या बोला है, डिफाइंड ईवीए एज व्हाट? ईवीए इज इक्वल टू नोपैट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC. अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नोपैट, है ना? अभी ऐसे दिमाग में आ रहा होगा. नोपैट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढेंगे हम देखेंगे, बट दिस इज इन अ नटशेल इज नथिंग बट अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और उसके बाद आप देख सकते हो WACC इज नथिंग बट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस इज WACC, राइट फ्रेंड्स. अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देख रहे हो बेस्ड ऑन व्हाट? हमारी जैसी कंपनी जो कंपैरेबल कंपनी होगी, कंपैरेबल रिस्क के साथ में होगी, उसका हमने यहाँ पे क्या लिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ EVA फ्रेंड्स. Very much important but very easy for you to understand. It comprises of few of the steps. थोड़े steps होते हैं बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? What will you do? You will start with what? With the calculation of net operating profit after tax friends. और net operating profit after tax आप कैसे ढूंढ सकते हो फ्रेंड्स? नीचे बहुत बढ़िया सा टेबल दिया है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हो. It starts from what? It starts from सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीज का 2 कॉलम बना दिया आपने, उसके साथ ये शुरू होता है EBIT से, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हो आप और वहां पे आप माइनस करते हो क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और इंटरेस्ट ऑन डेट. कोई भी डिबेंचर हुआ, कोई भी बोरोइंग हो गया, वो डिबेंचर हो गया, लोन इशू किया, कुछ भी इंटरेस्ट है वो माइनस कर दिया, तो आपको मिलेगा EBT. बोले तो अर्निंग बिफोर टैक्स. इसको हम और भाषा में क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स.
सीधी बात है, इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया लेकिन टैक्स यहां से माइनस करना बाकी है। आप देख सकते